Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Pareek, and I'm present with my live class. Kindly show your presence so that we can start the class. And the YouTube watchers, when I will upload this video on YouTube channel, I request you kindly don't leave it in between, because there are so many different informations which are important from examination point of view. If you watch this video completely, you will be benefited for more than 10 questions. Okay, so don't leave it and watch it fully, and kindly share it so that you people can help the other students to see it, to know more about English Cosmos, that is my institute, and about me also, so that they can be benefited. Okay, today's class is about University Wits. Kindly show your presence, keep writing yes, thumbs up, so that I can feel that you are here. First of all, we will be talking about, and those who want to read with me, those who want to understand this topic very easily and in detail, should go to my website mukeshpareek.com or englishcosmos.org and go to my blog there, because I have uploaded the latest entry on my blog. I have uploaded the things from which I will be reading out today. As you know that from last many days we have been discussing Elizabethan theatre, and Elizabethan theatre as such is a very long topic. It's a very a topic which requires a lot much detail actually. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केवल शेक्सपियर और मार्लो या बेन जॉनसन को पढ़ लेने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. अभी लास्ट एग्जाम, जो भी लास्ट एग्जाम हुआ है, अब तक एग्जाम हो जाता अगर कोरोना नहीं आता तो. सो इन द लास्ट एग्जाम देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट पैम्फलेट, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैम्फलेट. और जब हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं तो यू आर अवेयर दैट यूनिवर्सिटी विट्स are certain dramatists before Shakespeare. Okay, in between 1570 and 80 till 90, there were certain in 20 years there were certain graduates from university, Oxford University and Cambridge University. They were writing their prose and dramas and comedies and tragedies, and but everybody was not busy with the writing of tragedies and comedies. There were certain writers, for example, Thomas Nashe's name come to my mind. He was a prose writer, okay, and he was a pamphleteer. So अभी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि what is the definition of a pamphlet according to UNESCO. अब आप लोग बहुत आपको आश्चर्य होगा, उससे पहले 2 एग्जाम पहले नेट में क्वेश्चन आया था कि what is the exact definition of Picaro. Because this Thomas Nashe is famous, he's a University Wits. He's also famous for writing a picaresque novel. He started the genre of picaresque novel. So बहुत सारे बच्चों को picaresque word तो बहुत commonly आ जाता है, but they don't know exactly the origin of the words Picaro, and from the word Picaro the words picaresque has come. So आप समझ सकते हैं कि in the coming lecture, आज की क्लास में जो 1 घंटे की 1.5 घंटे की मैं क्लास लेने के मूड में हूँ, so you will be benefited. तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, ढंग से देखिए, और जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो don't skip it. मैं एक बहुत आई हैव अ कंप्लेंट टू ऑल ऑफ यू. चलो मुझे आप जवाब देके बताइए कि आप लोग फिल्म देख सकते हो 3 घंटे की, तो क्या एक एजुकेशनल वीडियो नहीं देख सकते जिससे आपका करियर बनेगा? सो आई थिंक यू शुड नॉट स्किप व्हेन आई अपलोड दिस वीडियो. क्योंकि हम लोगों ने आजकल क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि हम लोग फेसबुक पे ये लाइव क्लास लेने के बाद हम उसको डिलीट कर देते हैं, एंड देन वी अपलोड उसमें से 2% वीडियोज हम अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे, सो दैट सभी स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि हम फ्री की क्लासेस अटेंड करके और शायद हम क्लियर कर लेंगे, ये गलत फहमी है. तो जितना जल्दी हो सके एडमिशन्स ले लीजिए, क्योंकि मैं डिटेल डिस्कशंस जो है ड्रामास के वो मैं नहीं कर पाऊंगा फेसबुक पे. सो दीज आर जस्ट प्रमोशनल काइंड ऑफ क्लासेस. इस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये नहीं है कि प्रमोशनल क्लास है तो मैं अलग तरीके से पढ़ा देता हूं और रियल क्लास में अलग तरीके से. मोस्टली रियल क्लास में थोड़ा और हम टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं. ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स. पहले आप मुझे यस लिख करके बताइए दैट हैव यू कम टू द ब्लॉग. अपने घर में 2 फोन ले लीजिए, किसी और का फोन ले लीजिए, उस फोन के ऊपर आप मेरे वेबसाइट को खोल लीजिए mukeshpareek.com, और उस पर मेरा ब्लॉग दे रखा है राइट हैंड साइड में ऊपर. उसको टच करेंगे तो जो भी लेटेस्ट एंट्री है उसमें से मैं रीड करूंगा. कुछ
रीड करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, और इफ यू कैन स्प्लिट योर स्क्रीन, और उस स्क्रीन को स्प्लिट करके आप रीड भी कर सकते हैं, मुझे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट हाउ मेनी राइटर्स वर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। विट का मतलब आपको पता ही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो विट होती है इसका क्या मतलब होता है, काइंड ऑफ inventiveness, a kind of sharp-mindedness of somebody, and apart from sharp-mindedness that person is quite spontaneous also। तो देखिए 3 क्वालिटीज मैंने बता दी है। तो एक particular writer who uses all these things together means he searches for good words and that word is too much suitable for that situation। So from that point of view we can say that these were the dramatists or the writers, they were 6 or 7 in number। इनका मैं नाम ले लेता हूं, यूनिवर्सिटी विट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि दीज वर मोस्टली टर्म्ड एज प्ले राइट्स, क्लियर, एंड दे वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एंड उनके नाम में आता है जैसे प्रोमिनेंट वर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। दीज 3 राइटर्स, मार्लो, ग्रीन एंड थॉमस नैश, दे वर फ्रॉम कैम्ब्रिज। एंड जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, and these 3 were from Oxford। There is a controversy about the name of Thomas Kidd। कभी कभी ऐसा लगता है कि किड जो है वो यूनिवर्सिटी गए भी थे या नहीं थे। थॉमस किड जिन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा है जिसका सब टाइटल है हिरोनिमो इज मैड अगेन, तो जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि बेन जॉनसन ने भी एक्टिंग की थी, तो ऐसे करके एक कंट्रोवर्सी है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो नाउ एक बार मैं नाम फिर से ले लेता हूं, मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, दे वर फ्रॉम कैम्ब्रिज। देन जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, ये ऑक्सफोर्ड से थे। एंड वन अनदर नेम इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज थॉमस किड। मुझे यस लिख के बताइए ताकि आपको लगे कि हाँ आप ब्लॉग पे हैं एंड यू आर रीडिंग फ्रॉम द ब्लॉग ऑल्सो साइड बाय साइड। यू कैन गेट एक्सेस टू 2 phones फ्रॉम योर फैमिली, सो ऑन one phone you can see me and from the other you can read, because this lecture is going to be very very important for all of you, ठीक है। Okay, next important question can be there in this first entry on my blog। I have already talked about that who were they, okay। लेफ्ट साइड आ जाऊं, ओके, ठीक है, इज इट ओके, मैं लेफ्ट साइड में आ गया ठीक है। द यूनिवर्सिटी विट्स का जो, अच्छा ये टर्म किसने यूज किया, जब लोग ये राइटर्स लिख रहे थे, पील, नैश, ग्रीन, लिली एंड मार्लो एंड किड, by that time they did not know that they are university wits। ये नाम उनको 20th सेंचुरी में दिया है। किसने दिया है आप मुझे बताइए, ये पॉइंट मैंने कहाँ दे रखा है, जाइए ब्लॉग पे सर्च कीजिए, ब्लॉग पे जो लेटेस्ट एंट्री में मैंने सेकंड पॉइंट इसका बना रखा है, दैट इज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम। एंड जॉर्ज सेंट्सबरी 19th सेंचुरी के एक ऑथर हुए हैं, उन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज किया, जॉर्ज सेंट्सबरी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है वो आपको कोटेशन आ सकती है, तो इसीलिए आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट कोटेशन ओवर देयर। एटलीस्ट यस लिख के बताइए मुझे आप पहुंच गए हैं ब्लॉग पे। एंड काइंडली शेयर राइट नाउ, शेयर दिस वीडियो सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नो अबाउट अस, कि हम लोग सैटरडे की सुबह ऑलमोस्ट डेली हम लोग 10 o'clock वी गेट एनलाइटेंड, वी ऑल नो अ लॉट मैनी थिंग्स अबाउट लिटरेचर ऑफ इंग्लिश। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि अब मैं कोट करता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं बता देता हूं कि लिली का नाम बहुत फेमस है, किस लिए, क्योंकि 6 कोट कॉमेडीज करके 6 कॉमेडीज फॉर कोट करके उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क पब्लिश हुआ था। So they can ask you the names of all the comedies, from that particular work. I will be giving you different lectures on all the university bits. आज का लेक्चर मैंने थॉमस नैश पे रखा है, बट आई बी जस्ट टॉकिंग अबाउट इन हाफ एन आवर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इन ऑल। तो जब हम लोग अच्छा, और उसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन जो है उनके बारे में कहा जाता है, ही वॉज द फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। नोटोरियस इन द सेंस दैट ही स्टार्टेड अ काइंड ऑफ जर्नलिज्म, मतलब कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, दे आर कंसिडर्ड टू बी गिविंग अ लॉट मेनी न्यू थिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स दैट during the Renaissance humanism, so Oxford and Cambridge University, where the kind of knowledge was imparted to them, and when these graduates after their graduation or post graduation, when they came into the public,
one thing which should not be left, that these were the people who belonged to aristocratic families either, or they were intelligent plus rich. अदरवाइज एज यू नो दैट आज भी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज की स्टडीज को कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता है. आपकी जानकारी में कोई है जो जिसका किसी का ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हुआ है पिछले कुछ दिनों में? आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन इन किशनगढ़ किशनगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर संजय. His daughter has recently been selected there. You know, she qualified for this graduation from Oxford. So we all were very happy. But because that person is already, you know, a professor of linguistics there, so कभी हमारे मन में भी इच्छाएं जागी कि हम लोग ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरफ जाएं, because I keep trying that someday in the coming few years after Corona I'll be reading a paper in one of the universities. तो अभी बात चल रही है कि just look about these universities कि ये जो graduates वहाँ से या post graduates आते थे, तो जैसे जॉन लिली, he was famous because his plays were shown to क्वीन एलिजाबेथ. तो अब उसके प्लेस, इसका मतलब ही हैड एन एक्सेस, है ना. मास्टर ऑफ रेबल्स के अंदर उनका कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज मास्टर ऑफ रेबल्स. सो मास्टर ऑफ रेबल की पोस्ट में आने के अंदर वो ही वाज इन द कंपटीशन, जॉन लिली. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट दीज पीपल वर नॉट कॉमन पीपल. ओके. और एक दे स्टार्टेड, यू नो, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो. हालांकि उनमें कुछ restrictions were there. They were you know, writing certain cliches item, certain bromide and hackneyed themes. मैंने ये 3 words यूज किए हैं, bromide, hackneyed and cliche. It means उन्होंने कुछ एक जैसा लिखा जिसकी वजह से आज हम उनको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं. But somewhere, you know, they came out of the interlude and morality plays. हालांकि देखिए, जब मार्लो का नाम आता है, और हम कल भी बात कर रहे थे कि क्रिस्टोफर मार्लो, आपको मालूम है कि उनका जो डॉक्टर फॉस्टर द मोस्ट फेमस प्ले है, वो कहीं पर भी कैन बी कंपेयर्ड विद अ मोरालिटी प्ले वेयर, यू नो, मॉरल वर्च्यूज एंड वाइसेस, यू नो, दे आर पर्सोनिफाइड. सो इससे पता चलता है कि समवेयर दीज राइटर्स वर क्लीशे, ब्रोमाइड एंड हैकनेड. दीज आर 3 टर्म्स. इनका मतलब होता है रिपीटेड, यू नो, बोरिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, बट रिपीटेड थिंग्स, यू नो, विच दे वर राइटिंग ऑन, और से दे वर नॉट कमिंग अप विद सर्टन न्यू आइडियाज. लेकिन बात इसलिए ऐसे चल रही है कि लेकिन उससे पहले जो आइडियाज थे उनसे ये थोड़े नए थे. और ऐसा होता है कि एक साथ अगर सारे राइटर्स उन्हीं थीम्स पे लिखते हो, तो देन वी स्टार्ट कॉलिंग देम लाइक, यू नो, दे आर राइटिंग ऑन क्लीशेज. ठीक है. तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट राइटर का नाम मैंने 3rd पॉइंट में दिया है. आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट रिप्लाइंग कि हैव यू कम टू माई ब्लॉग, कैन यू कम टू माई ब्लॉग एंड कैन रीड फ्रॉम देयर ऑल्सो साइड बाई साइड. लाइक इन द 3rd पॉइंट आई हैव रिटन अ नेम, टॉमस सैकविल. तो ऐसा कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो अकेडमिक वर्ड्स ड्रामाज लिखते थे. मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे लिली का जो यूफ्यूज है, जिसमें ही स्टार्टेड, यू नो, राइटिंग इन अ वेरी विटी मैनर, circumlocutory way of talking among the aristocratic classes. Okay, and more of kind of antithesis, paradoxes, you know, and long words and euphemism का मतलब आपको पता ही है, that these writers started talking not directly, you know, for the common man, but they started entertaining. They started catering to the needs of the people of court and aristocratic classes. Okay, तो टॉमस सैकविल के जो ड्रामास थे, और या तो उन्होंने मतलब दे स्टार्टेड राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर थीम्स, या तो वो कोर्ट के लिए लिख रहे हैं, और या वो लिख रहे हैं टॉमस सैकविल, जैसे कल हम ग्रामर गर्टन्स नीडल की बात कर रहे थे. सो यू नो, सर्टन ड्रामास विच वर फेमस जस्ट बिफोर देम, they were trying to writing by certain innovations and improvisations. They were writing on the same thing. Clear? तो ऐसे करके आपको 3rd पॉइंट के बारे में मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, बिकॉज ये जो मैंने कोटेशन दी है यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, दैट कैन बी आस्क्ड बाय सेंट्सबरी. ओके, दैट कैन बी आस्क्ड. जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम, एंड काइंडली जस्ट डोंट लुक एट अस, काइंडली रीड विद अस. आपका थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, एंड गो टू माई वेबसाइट mukeshpareek.com. जैसे ही वो वेबसाइट खुलेगी, राइट हैंड साइड में आपको मेरा ब्लॉग दिखेगा. ऑन दैट ब्लॉग लेटेस्ट एंट्री है यूनिवर्सिटी विट्स की, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो रीड एंड कैन स्टे ऑन दिस फेसबुक पेज फॉर सम टाइम. अच्छा, शुड आई रीड फ्रॉम देयर? सो देखिए इसमें क्या लिखा है, मैंने कोटेशन दी आपको. विद मार्लो एट देयर हेड,
made the blank verse line for dramatic purpose, dismissed, cultivated as they were the cultivation of classical models. इसका मतलब है these university wits writers, जिनके हेड कौन थे? मार्लो. ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मार्लो somewhere excelled all the themes of classical antiquity plus morality plays and interludes. Okay, and then he came up with the needs of Renaissance. थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द नीड टू राइट फॉर द सेक ऑफ रेनेसा और द हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दैट समबडी इज केटरिंग टू द नीड ऑफ रेनेसा. जैसे आज की जो जनरेशन है, आपने देखा होगा कि वो काफी ज्यादा कंप्यूटर सेवी है, टेक्नोलॉजी सेवी है. एंड आज की जो जनरेशन है, अगर उसको आप कहो कि पुरानी फिल्म देख लो, जैसे मैंने अपनी बिटिया को कहा लॉकडाउन में कि राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है, जो एक पहली फिल्म थी इंडिया में, हालांकि आलम आरा पहली फिल्म थी, लेकिन मैंने उनको ये भी कहा कि आप वो भी देखो. एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि जिसको फर्स्ट कैंस अवार्ड मिला था इंडिया का, नीचा नगर, वो फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज समवेयर ही वाज टॉकिंग अबाउट वन इंग्लिश मूवी. देन आई आस्क्ड हिम लाइक बेटर यू गो एंड वॉच, यूट्यूब पे दे रखी है नीचा नगर. देन ही वाज सरप्राइज कि व्हाई टू वॉच, हाउ टू वॉच, और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि हम लोग जो ओरिजिनल चीजें होती हैं उनको देखना पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमारी नीड्स अलग है, आज की जनरेशन की नीड्स अलग है. ओके, बट बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द फ्यूचर प्रोफेसर्स, हमें सब चीजें पता होनी चाहिए. तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अलग तरह का स्टाइल कल्टीवेट कर दिया, पुराना स्टाइल डिसमिस कर दिया एंड क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया एंड गेव इंग्लिश ट्रेजेडी इट्स मैग्ना चार्टा ऑफ फ्रीडम. अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में, एज अ कोटेशन दे कैन आस्क यू. मैग्ना कार्टा, मैग्ना चार्टा, बोथ आर द प्रोनाउंसिएशंस. ओके, डोंट ब्लेम मी फॉर दैट. मैग्ना चार्टा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पास्ट इन 1215. और यहां पे ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम, मैग्ना चार्टा ऑफ फ्रीडम एंड सबमिशन टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्चुअल लाइफ ओनली. इसका मतलब है ये जो ड्रामास थे, ये लोगों को खींच कर ले आते थे क्योंकि उनकी जो रेस्ट्रिक्टेड लाइफ होती थी, दे यूज टू फील दैट दे आर समवेयर getting themselves free from the clutches of the day-to-day life. Okay, and somewhere these dramas were giving them hopes and catering to their needs to the mind. क्योंकि अगर एक शहर के अंदर हर चौथे पांचवें घर में अगर यूनिवर्सिटी एजुकेटेड कोई ग्रेजुएट है, तो उसके आइडियाज, उसकी नॉलेज से बाकी के लोग इंस्पायर्ड रहते हैं. सो अगर मान लीजिए वो बता रहा है उनको कुछ नई किताब के बारे में, बिकॉज पब्लिशिंग वाज ऑलरेडी इंक्रीजिंग डे बाय डे देयर, तो ये जो ड्रामास थे वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते थे एंड दे वर क्रिएटिंग अ न्यू रेनेसा. इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी विट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है लोगों को, और ज्यादा, क्योंकि देखो जब हम किसी गांव के अनपढ़ आदमी को कोई ऐसी फिल्म दिखाते हैं जिसमें मान लीजिए रोबोट्स की बात चल रही हो, तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा. बट समवेयर सपोज ही हैज ऑलरेडी हर्ड अबाउट रोबोट्स, रोबोज एंड ऑल, तो उसको उसमें इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, तो समवेयर दीज ड्रामेटिस्ट started talking about the coming world, Renaissance. So these dramatists, university wits, had a touch of a kind of reformation, not reformation, Renaissance. ठीक है. However, they failed to achieve perfect life likeness. अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी किया है जॉर्ज सेंट्सबरी ने. लाइफ लाइकनेस क्या होता है? एक बात बताइए, आज की जो हम फिल्में देखते हैं, उन फिल्मों को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको लगता है कि किसी भी फिल्म में धोती पहनी जा रही है आदमी के द्वारा? कोई ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है जिसमें दे आर शोइंग द रियल लाइफ ऑफ कॉमन मैन? मसान एक फिल्म आई थी जिसमें समवेयर दे शोड टू अस दैट सर्टेन थिंग्स आर देयर विच आर टू मच लाइफ लाइक. तो एक और इनके ऊपर आरोप लगा है यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर दैट दे वर टोटली अवे फ्रॉम, क्योंकि देखिए उनका जो मोड ऑफ बातचीत है, जो डायलॉग का मोड है, दैट इज ब्लैंक वर्स. And you all know that we don't talk in terms of blank verse. We don't talk in terms of witticism in our day-to-day life. इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, उन्होंने ड्रामा को वो दे दिया जो आज की फिल्मों ने दे दिया है. मतलब वो आम आदमी का माइंड स्पॉइल भी करने लगे किसी तरह से. कैसे? जैसे फिल्म देख करके किसी को लगता है कि लव मैरिज होनी चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि लव मैरिज के कितने ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं.
है ना, या उसको ऐसा लगता है कि जो कुछ जैसे जिसको पोइटिक जस्टिस बोलते हैं, क्योंकि फिल्मों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छे के साथ अच्छा हो गया, बुरे के साथ बुरा हो गया, बट इन रियल लाइफ यू नो ऑल द रास्कल्स आर दे आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, है ना. एंसेस्ट्रल पर्ल्स इन स्टाई, आपको याद आ रहा होगा वो राइटर W.B. येट्स ने ये लाइन लिखी है. तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन्होंने क्या क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा. इट वॉज लेफ्ट टू द एक्टर प्लेराइट्स हु राइजिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बिगिनिंग्स बट पोजेसिंग इन देयर फेलो शेक्सपियर अ चैंपियन अनपैरेलल्ड इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स, borrowed the improvements of the University Wits, added their own stage knowledge, and with Shakespeare's aid achieved the master drama of the world. तो ये जो पूरा मैंने कोटेशन पढ़ा, इसको आप घर पे दोबारा पढ़िएगा. The quotation is very important. It can be asked in your exam. कुछ लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते जब मैं कहीं से कुछ पढ़ के समझा रहा होता हूँ. तो मैं बता दूं कि आज मैं टॉमस नैश पढ़ाऊंगा और आपको ये पता चल जाएगा कि टॉमस नैश एक इतना फेमस राइटर हुआ है कि आज भी उसको पढ़ा जाता है. क्योंकि एक होता है आर्टिफिशियल और सिंथेसाइज्ड टीचिंग और लर्निंग एंड नॉलेज. सिंथेसाइज लिख लीजिए आप. सिंथेसाइज क्या होता है कि रट करके मैं कुछ बैठ गया और उस वीडियो को उसको मैंने एडिट कर दिया और मैंने केवल वो पोर्शन दिखा दिया, क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं तो उसमें रटे हुए डायलॉग्स होते हैं. तो एक स्पॉन्टेनिटी, एक्सटेम्परी, एडलिब, इम्प्रोवाइजेशन, ये सब चीजें खो जाती हैं. और यही कारण है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है ना, उस एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये सब चीजें नजर आएंगी आने वाले दिनों में कि हम लोग अब 5वीं तक फॉरेन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे. व्हाई? बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल हमें बढ़ाना है अपना. हमें जिस तरह से मैं पढ़ाता आया हूं 20 सालों से, और मेरे बच्चे जो सफल होते हैं, लगभग सारे स्टूडेंट्स मुझे थैंक्स बोलते हैं और मैं उनके थैंक्स की वजह से हमेशा इंप्रोवाइज करता हूं आगे से आगे. उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें वी हैव टू चेंज द वेज ऑफ लर्निंग. और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उनमें से लगभग सभी ने कुछ ना कुछ नया दिया. ओके. और लेकिन जो सेंट्सबरी है उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं साथ साथ में, दैट केवल नया ही नहीं दिया, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी भी क्रिएट कर दी जो लोगों के माइंड को, जिसने एक क्लीशेड माइंड कर दिया उनका. ठीक है. अब आते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में कि व्हाट इज यूनिवर्सिटी विट्स. तो ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, उनके नाम डिस्कस कर चुका हूं. अब आते हैं कि यूनिवर्सिटी, 5th पॉइंट पे आ जाइए. देखिए मैंने क्या लिखा. यूनिवर्सिटी विट्स हैड अ फॉन्डनेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हीरोइक थीम्स इन देयर ड्रामाज. अब ये एक पॉइंट है विच कैन बी क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो कि एक बात बताइए, अभी सोनू सूद ने सबकी मदद की, आपको नहीं लगता वो रियल हीरो है? एक बात. दूसरी बात, जितने भी यूनिक्स हैं, यूनिक्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिक्स, दोज द थर्ड जेंडर पीपल. आपने जरूर वीडियोस देखे होंगे कि जैसे ही कोरोना क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो जो गरीब लोग, जब when they were माइग्रेटिंग और there were slum areas where people could not go to the work and they were really starving, तो जितने भी थर्ड जेंडर के लोग हैं उन्होंने तुरंत चैरिटी करना स्टार्ट किया. सो कैन आई आस्क यू, लाइक aren't the hero the people whom we keep making fun of? तो मेरी लगता है वो रियल हीरोज हैं. तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं, इन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल हीरोइक थीम इंट्रोड्यूस कर दी इंग्लैंड के अंदर. अब ये बात बताइए मुझे, कौन है रियल हीरो? मुझे लगता है सभी इंपॉर्टेंट लोग, मैं आपको हीरो की एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं. हालांकि मैंने आपको कुछ दिन पहले होमवर्क दिया था कि यू शुड अंडरस्टैंड एंड रीड प्रॉपरली टॉमस कार्लिल्स वर्क हीरो एंड हीरो वर्शिप. कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक भूसा भरा होता है कि हमें हीरो चाहिए. We don't understand and we mostly overestimate either or underestimate the hero in us. तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, इन्होंने क्या किया, जैसे आपको डॉक्टर फॉस्टस याद है, आपको टेम्बरलेन के बारे में सुना होगा. टेम्बरलेन, तैमूर लंगड़ा जिसको बोलते हैं, डॉक्टर मार्लो ने उसको एक हीरो की तरह दिखाया. उसके मुंह में ऐसी लाइंस स्टफ कर दी कि इज टॉकिंग लाइक अ हीरो. बट वंस somebody who gets power, monetary power, the power of knowledge, जैसे डॉक्टर फॉस्टस है, उसके पास पावर ऑफ नॉलेज है, बट वो पावर ऑफ नॉलेज उसको किस तरफ लेके गई? ओके, देन यू लीव रिलीजन, यू लीव मोरालिटीज. ओके, ये सारी चीजें जब हम लोग छोड़ देते हैं, सो एक आर्टिफिशियल लाइफ हम जीने लगते हैं. सो दीज ड्रामेटिस्ट दे इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक थीम्स. They often took it from the lives of great figures. So यहां पे एक बहुत नेगेटिव पॉइंट आ गया कि उन्होंने कॉमन मैन जो थे इंग्लैंड के, उनको नकार दिया.
they just denied the contribution of common men. That's why sometimes we are less aware कि जब हमारे यहाँ पे किसी को नोबेल प्राइज मिलता है पीस का, तो हमें पता चलता है कि अरे ये कैलाश सत्यार्थी जो है वो हमारे देश में रहते हैं क्या, बिकॉज व्हेन द मीडिया पब्लिशेज इट एज अ हेडलाइन, देन इंडिया कम्स टू नो दैट ओ ही लिव्स इन इंडिया. इसका मतलब है कि वी प्रॉपरली डोंट पे अटेंशन टू द रियल हीरोज अमंग अस. और ये कहीं ना कहीं फिल्मों को भी एक दोष जाता है कि हम लोग, देर आर ऑलवेज पॉलिटिक्स बिहाइंड अवार्ड्स, देर आर ऑलवेज पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस, we call it giving the awards and canonization of books and all. तो क्या केवल प्रेमचंद ही ऐसा लिख के गए हैं? क्या केवल शेक्सपियर ही एक ड्रामेटिस्ट है? इसीलिए अब रिसर्च में सामने आ रहा है कि देयर वर अदर ड्रामेटिस्ट आल्सो, देयर वर वुमेन राइटर्स आल्सो इन द एलिजाबेथन एज, दोज हु वर नॉट पब्लिश्ड बाय दैट टाइम, क्योंकि उनको पेट्रन्स चाहिए होते हैं. एंड पेट्रन्स जो होते हैं वो पेट्रन्स उनको पैसा देते हैं और वो उन्हीं के बारे में लिखते रहते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हीरोइक थीम्स जब वो क्रिएट करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, somewhere these university wits changed the way we look at reality. Clear? Or they gave heroic treatment to the heroic themes. Their dramas usually had variety, splendid description and violent incidents. अब आप कोई भी एक इंसिडेंट याद कर लीजिए टेम्बरलेन का, तो आपको लगेगा वो वायलेंस को बहुत पसंद करते थे. वायलेंस के ऊपर मुझे बहुत बोलने का मन है इस वक्त, बिकॉज वायलेंस समवेयर इज लिंक्ड विथ करेज. एक statement is very famous that if you kill one, then you are a sinner. If you kill 10 people, you are again a culprit. Okay, and then if you kill thousands, then you are a god. Okay, Nietzsche has said this. इसका मतलब है कि आप जब बहादुरी की बात करते हो, आप बहादुरी की बात करते हो, तो बहादुरी में तो इसीलिए हम किसी को कहते हैं चूड़ियां पहन ले. तो इसका मतलब somewhere you have fixed a dichotomy कि softness is not heroic and violence, क्योंकि आप चाहे अपने बचाव के लिए ही मार रहे हो. समवेयर इन हीरो वर्शिप, समवेयर वायलेंस इज always required. So the moment this world is becoming more and more civilized, आपको सोचना पड़ेगा what is the exact meaning of civilization. क्या हमें civilization में violence चाहिए? क्या हमें wars चाहिए? Can't we do away with violence? Can our teaching methods be so that we can avoid violence and can live very happily? Okay, so यहाँ पे violence, अच्छा, एक this is one aspect of violence. Second aspect of violence is Ted Hughes violence, that which is an integral part of nature, which is that if you don't cut with your knife the vegetables, you can't eat. Okay, so one aspect of violence is that is the survival instinct in us, and second violence is that which is a forced one that shows, that proves ourselves heroes. Okay, so that way they created these questions on stage, and their chief aim was to achieve strong and sounding lines. अच्छा, आपने हीरो दिखाया तो आपको उसके मुंह में you have to stuff those lines so that he can seem hero. मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, आपको मालूम है शेक्सपियर इतने बड़े राइटर क्यों हैं? क्योंकि जब आप जूलियस सीजर पढ़ते हो ना, तो यू विल बी सरप्राइज्ड. जूलियस सीजर को दिखा करके उसके साथी पता क्या बात कर रहे हैं कि ये चौथे दिन बीमार पड़ता है, अभी ये उस दिन नदी में डूब रहा था, मैंने इसको बचाया, ये हीरो कैसे हो सकता है? बिकॉज एक्चुअल जूलियस सीजर वॉज अ वेरी लीन फिगर. ही वॉज नॉट अगर मान लीजिए आपके सामने जैसे मैं बैठा हूं, और अगर मुझे कभी किसी दिन ये खबर मिले आपको कि मैंने 4 लोगों को एक साथ मार डाला, तो इसका मतलब जब नेसेसिटी हुई मेरी लाइफ में और मैं अपनी कॉवर्डिस को साइड में रख करके, अपनी ह्यूमैनिटी को साइड में रख करके, सपोज आई सेव माई सेल्फ, ओके, एंड आई किल समबडी और से आई स्लैप समबडी एंड आई कैन फाइट इजिली, तो आप देखोगे कि अच्छा, ऑटोमेटिकली द परसेप्शन अबाउट मी विल बी चेंज्ड. लेकिन इट इज अ फैक्ट. इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एक आपने हीरो दिखाया तो उसके मुंह में आपको हाई फाई लाइंस डालनी है, लेकिन इन ड्रामेटिस्ट ने ऐसा शो किया. इसीलिए शेक्सपियर महान है, क्योंकि वो शाइलॉक को शाइलॉक के 2 एस्पेक्ट में दिखाता है. वो मैकबेथ को एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग भी दिखा देता है, और एक हाईली इंटेलिजेंट आदमी के साथ साथ एक हाईली ब्रेव आदमी भी दिखा देता है. सो ही इज द वन हु कैन शो द इनसाइड ऑफ द गट्स ऑफ अ कैरेक्टर. ओके, दैट इज वी कॉल कैरेक्टराइजेशन. वो मैं आपको कभी और डिस्कस करूंगा. अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि अब आपको हीरो दिखाना है, तो हीरो के मुंह में आपको हाई फाई लाइन्स डालनी पड़ेंगी. तो फ्रॉम देयर
द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें स्टडीड हैं. अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, इन्होंने लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं, कैटेगरी नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, लोअर स्ट्रेटम. फॉर एग्जाम्पल, इन यूनिवर्सिटी विट्स यू कैन नॉट सी servants talking. Okay, but in Shakespeare you can see servants not only talking in the drama, as well as they are also enjoying in the theater also. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि he is catering to the needs of all the other. I'm sorry, I'm digressing, from the University Wits, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि side by side I am also analyzing that what was right and what was wrong. ये एक टीचर का काम होता है कि आपको हमने कहीं से कुछ चीजें दे दी, लेकिन उसके अंदर अपना दिमाग हम जब तक नहीं लगाने देंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको पढ़ना कैसे है. ओके, सो देयर वाज लैक ऑफ रियल ह्यूमर इन देयर ड्रामाज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रियल ह्यूमर जो होता है वो सिचुएशनल होता है, स्पॉन्टेनिटी से आता है. जैसे अपन बात करते करते मैं कुछ ऐसा कह दूं, शेवियन विट यूज कर लूं जो बर्नार्ड शॉ यूज किया करते थे, तो उसको बोलेंगे कि हाँ इनके अंदर ह्यूमर है, एंड इंस्टेंटली कैन यूज ह्यूमर. लेकिन एक है कि मैंने जानबूझ करके ह्यूमर क्रिएट किया, तो वो जो जानबूझ करके ह्यूमर क्रिएट किया जाता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है. इसका मतलब है राइटर में उतना दम नहीं है, क्योंकि ये सिसरो को और जो पुराने राइटर्स थे उनको कॉपी करते थे. सो एज सच दे वर नॉट वेरी इनोवेटिव राइटर्स. ओके, द ओनली एक्सेप्शन वॉज लिली, और लिली के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं. द वुमन इन द मून, ये जो इनका ड्रामा है, इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी. इसको आगे शेक्सपियर ने भी कॉपी किया. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दे रखा है कि भाई क्रिस्टोफर मार्लो. मैं क्रिस्टोफर मार्लो को नहीं पढ़ रहा हूं अपने ब्लॉग से अभी, बिकॉज आई विल बी रीडिंग in the coming lectures. I'll be talking about, as I told you that I'll be discussing one after the other different university wits. ठीक है, अभी अपन बात करेंगे कि एक एडवर्ड एल्बर्ट करके राइटर हुए. एडवर्ड एल्बर्ट, उन्होंने एक बुक लिखी है. ये मैं 13 पॉइंट पे आ गया हूं डायरेक्टली. आप भी आ जाइए, मुझे यस कह के बताइए दैट आप 13 पॉइंट पे आ गए हैं ब्लॉग पे. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1979 में बुक छपी थी. देयर ही टॉक्स अबाउट सर्टेन फीचर्स विच वर कॉमन. सो नाउ आई एड एंड आई रीड एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम. फर्स्ट, that what were the common characteristics and features of these university writers. There was a fondness for heroic themes such as the lives of great figures like Muhammad and Tamburlaine. That already we have discussed, that these writers started creating these heroic figures. Second, heroic themes needed heroic treatment, great fullness and variety, splendid description, long swelling speeches, the handling of violent incidents and emotions. These qualities, excellent when held in restraint, only too often led to the loudness and disorder. So these were the characteristics: loud, clanging voices, scurrilous themes. There were certain dialogues, which were quite famous because the language was embellished. थर्ड पॉइंट इज द स्टाइल वॉज ऑल्सो हीरोइक. मैं ऑलरेडी हीरोइक पे लेक्चर दे चुका हूं कि हीरोइक का मतलब हमें समझना है. हीरोइक एक होता है द स्पॉन्सर्ड वन, द थिंग्स विच आर हर्ल्ड अपॉन समवन, दैट ही इज अ हीरो. ओके, you all are heroes if you are really working hard wherever you are working, okay, to bring about changes. Okay, so heroic themes needed heroic treatment, gratefulness, variety, splendid description. मैं पढ़ चुका हूँ. C point पढ़ रहा हूँ. That style was also heroic. The chief aim was to achieve strong and sounding lines, magnificent epithets, okay, and powerful declamation. Declamation मालूम है ना आपको क्या होता है? खड़े खड़े लंबी लंबी स्पीचेस देना, which was the quality of French drama. लेकिन दैट वॉज एडेड बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि दीज ड्रामेटिस्ट वर नॉट ओरिजिनल ड्रामाज आते हैं शेक्सपियर के आते. ओके, सो दे वर समवेयर ईदर कॉपिंग सिसरो, सैकविल एंड द अदर राइटर्स. Powerful declamation, this again led to the abuse and to mere bombast, mouthing, and in worst cases to nonsense. And that is why some of the dramas, if we read today, we come across like, we don't want to read them. Okay. The best example such as Marlowe. तो Marlowe आपको पता ही है, कहा जाता है कि Marlowe touched the height of Renaissance and somewhere a kind of originality was there. And उसके बाद तो शेक्सपियर आ ही जाते हैं. ठीक है, so result is quite impressive. In this connection, it is to be noted that the best medium for such expression was blank verse.
ब्लैंक वर्ड्स के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। यू टेल मी, डू यू नो अबाउट ब्लैंक वर्ड्स? कई बच्चों को ब्लैंक वर्ड्स का मतलब पता नहीं होता है। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इंग्लिश प्रोसोडी, PROSODY, मैं एक अलग लेक्चर दूंगा आपको प्रोसोडी पे। इंग्लिश प्रोसोडी 4 मीटर बहुत फेमस है। क्या होता है कि जब हम सिलेबल्स की बात करते हैं, मैं सिलेबल भी समझा चुका हूं ऑलरेडी कि व्हेन यू नो वी स्पीक, तो कितनी बार अपना मुंह हिलता है, तो जितनी बार हमारा मुंह खुलता है, वॉवल के बिना मुंह नहीं खुलेगा। ओके, फिर उसके बाद इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की एक खास स्टाइल होती है, दैट इज के दे हैव सम स्ट्रेसेस एंड अनस्ट्रेसेस। ठीक है, तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को हम गिनते हैं, तो एक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस्ड के बीच को हम एक फुट बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस्ड। अभी अनस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे बोलना है पेन, तो आपको पता है कॉन्सोनेंट की वजह से मैं प पे स्ट्रेस करूंगा। ओके, और मुझे अगर बोलना है डॉक्टर, तो 2 बार मुंह हिलाना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें 2 सिलेबल्स हैं। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बोलूं, तो आपको पता है कि जो सिलेबल, जो स्ट्रेस आ रही है उसके बाद अनस्ट्रेस, डॉक्टर, हमें डॉक्टर, आर पे दोबारा स्ट्रेस नहीं आ रही ना, इसका मतलब एक वर्ड को बोलते वक्त एक में स्ट्रेस है और एक में अनस्ट्रेस है। तो ये जो एक रिदम है, अगर ये 5 बार आ जाए एक में, तो उसको बोलते हैं, अच्छा, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस को बोला जाता है आई एम। एक वर्ड है डिक्शनरी में ये, तो आई एम और पेंटा मतलब 5, तो 1 फुट को अपन मीटर मान सकते, मीटर का मतलब होता है उसका क्या रिदम है। तो आई एम का मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अगर इतना 5 बार आ जाए एक लाइन में, तो हम उसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। सो ब्लैंक वर्ड्स इज आयम्बिक पेंटामीटर। अब उसको ब्लैंक वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी मच सिमिलर टू, अकिन टू दिस आयम्बिक पेंटामीटर। जैसे अगर किसी अंग्रेज को ऐसे बोलना है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली एक टाइम बाउंड लैंग्वेज होती है। एक इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इंग्लिश इज अ टाइम बाउंड लैंग्वेज। दुनिया की सारी भाषाएं टाइम बाउंड होती हैं। The language we speak as Hindi and these modern languages which are spoken in the metropolitan cities are artificial forms of real languages. The accent, जिसको अपन accent बोलते हैं, that comes from the rhythm of a particular language. जैसे एक हरियाणवी को बोलना है, रे भाई कित जा रहा, है ना, रे भाई कित जा रहा, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो एक रिदम, एक फॉलो, एक राइज एंड फॉल से बोल रहा है। जैसे मैं पहले समझा चुका हूं किसी और लेक्चर में, बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन इट अगेन सो दैट द न्यू स्टूडेंट्स कैन आल्सो बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। हर अपनी भाषा का एक रिदम होता है। जैसे हमारे मेवाड़ की तरफ चले जाओगे आप, उदयपुर की तरफ, तो खीगिरे खीगिरे खीगिरे, एक अलग तरह की वो उसको बोलना है, काई कर रही है, मतलब क्या कर रहा है। जैसे थोड़ा सहारनपुर की तरफ जाओगे, मुझे ना पता, मुझे ना पता, एक अलग तरह की। जैसे जयपुर में होगा, वो बोलेंगे घंटी बजा देंगे हम, तो आपके डोरबेल बजा देंगे, घंटी बजा देंगे, आप नहीं आओगे तो हम क्या करें, एक लिल्टिंग वॉइस होती है। तो एवरी एरिया हैज अ रिदम ऑफ देयर ओन। सो इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिदम है, दैट इज कॉल्ड, वो जो रिदम है वो आयम्बिक है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो उसको कोई पर्टिकुलर रिदम का नाम नहीं देने की वजह से ब्लैंक बोलते हैं, मतलब ये तो ब्लैंक है। ठीक है, और वैसे तो 4 जो मेन होती है, मैंने उसको इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि आप ऐसे याद रख लो, ITAD, इटैड, एक नाम याद रख लो। I से I am, T से ट्रोकेक, ट्रोकेक I am का ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे? अगर I am में अनस्ट्रेस और स्ट्रेस है, तो ट्रोकेक में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। समझ रहे हो? अगर आई एम में पहले अनस्ट्रेस आ रहा है और फिर स्ट्रेस आ रहा है, तो ट्रोकेक में क्या आ जाएगा, पहले स्ट्रेस और फिर अनस्ट्रेस। तो ये आपको याद रह जाएगा, इट, फिर आ जाएगा एड। तो एनापेस्टिक, ए का मतलब एनापेस्टिक, जिसमें 2 अनस्ट्रेस और 1 स्ट्रेस। ओके, तो एनापेस्टिक मीटर हो गया। और फिर इट एड डक्टाइल, डक्टाइल में क्या होगा, 1 स्ट्रेस और 2 अनस्ट्रेस। तो ऐसे करके आप थोड़ा आज पढ़िएगा, फिर मैं एक अलग से आपको क्लास दूंगा। सो ब्लैंक वर्ड्स आपको याद रखना है, उनको माइटी लाइन्स बोला है। और मेरा पूरा मन है आपको बेन जॉनसन की वो शेक्सपियर को डेडिकेटेड पोएम पढ़ाने का। इन दैट पोएम शेक्सपियर, बेन जॉनसन हैज टॉक्ड अबाउट, देयर ही यूज्ड द वर्ड माइटी लाइन्स फॉर मार्लो, कि मार्लो जो है, उन्होंने माइटी लाइन, माइटी मतलब पावरफुल लाइन्स, दोज, ये जो लाइन्स है वो समवेयर व्हेन आर स्पोकन बाय समवन ऑन स्टेज, तो उसको ऐसे लगता है कि एक हीरो बोल रहा है, अपनी जान लगा रहा है उस चीज को समझाने में। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, नाउ आई डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स थॉमस नैश।
आप टॉमस नैश के बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, आप लोग लिखते भी जाइएगा, इसमें फिर मुझे काफी टाइम लग जाएगा। टॉमस नैश का जो ही वॉज बॉर्न इन 1567। ओके, लिखते जाइए ताकि लेक्चर सीरियस हो जाए आपका। अब he was a pamphleteer, he was a poet, he was a dramatist and he was a prose romance writer। मैं फिर से रिपीट करता हूं, he was a pamphleteer। पैम्फलेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं पैम्फलेट की डेफिनेशन बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है लास्ट टाइम। पैम्फलेट आपने सुना है ना, कुछ लोग उसको पैम्पलेट बोलते, पंपलेट बोल देते हैं। तो पैम्फलेट की डेफिनेशन पूछी थी तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं कि अ पैम्फलेट इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक रीडिंग के अनुसार यूनेस्को डिफाइंस अ पैम्फलेट एज अ नॉन पीरियोडिकल प्रिंटेड पब्लिकेशन। एक पॉइंट क्या, नॉन पीरियोडिकल होना चाहिए, एक बार छप गया दोबारा उसके अंदर कुछ पीरियोडिक नहीं होना चाहिए। ओके, ऑफ एटलीस्ट 5 बट नॉट मोर देन 48 पेजेस। ये क्वेश्चन नेट में आया था। अब के बार कुछ और पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ऑफ द कवर्ड पेजेस पब्लिश्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। Non-periodical printed publication of at least 48 to 49 pages, exclusive of the cover pages, exclusive of the cover pages। तो ऐसे करके ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो पैम्फलेट जो होते हैं वो कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं क्योंकि उसको आपने लिखा, कई बार आपने अपने नाम को भी उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपने स्यूडोनिम यूज कर लिया, ठीक है। सो अब उनके मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम लिख रहा हूं, आप भी लिखते बोल रहा हूं, लिखिए। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर टॉमस नैश का इंपॉर्टेंट वर्क है बच्चों, एग्जाम में आ जाएगा। इसका सबटाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। द लाइफ ऑफ जैक विल्टन ये एक पिकरेस्क नॉवल है। पिकरेस्क वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो लो स्टेटम ऑफ सोसाइटी से दिखाते हैं और वो हाईवेज पे भटकता रहता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। पिकरेस्क वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड पिकारो। पिकारो इज अ स्पेनिश वर्ड। इतनी सारी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट पिकरेस्क नॉवल माना जाता है ये मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, दी अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। अब बताने की जरूरत नहीं है कि अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर है तो इसका मतलब है उसके साथ हमेशा नेगेटिव नेगेटिव होता रहता है। और इसके अलावा व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस, दैट इन दिस वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इसमें जो राइटर है वो समवेयर इज मेकिंग फन ऑफ। हमेशा याद रखिएगा that Thomas Nash is famous for criticizing his society and I consider him the most original writer। उसका मैं आपको कारण बताता जाऊंगा अभी ताकि लेक्चर भी हो जाए और चीजें आपकी समझ में भी आ जाएं। आप मुझे यस बोल के बताइए आप सीरियसली लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि these things are not available on the blog। ये मैं केवल बोलूंगा और इसको जिसको दोबारा देखने का मन है वो YouTube पे जाके देख सकता है। आज की क्लास में अपलोड करूंगा बिकॉज 5-7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। दे इन्फॉर्म्ड मी कि आज वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, सो फॉर देयर सेक आई विल अपलोड इट। अदरवाइज मोस्टली हम इसको क्लास होने के बाद डिलीट कर देते हैं वीडियो को। ओके, नेक्स्ट लिखिए, पहला लिख लिया आप लोगों ने, दैट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ओके, नेक्स्ट वन इज पियर्स पेनिलेस। PIERCE, पियर्स पेनिलेस। His supplication to the devil, ये इसका सब टाइटल है, His supplication for the devil। अब ये एक इस तरह का वर्क है which you can link it with डॉक्टर फॉस्टस। तो पियर्स पेनिलेस से पता चल रहा है कि उसके पास पियर्स जो लड़का है वो खूब एजुकेशन लेता है हायर, पर उसको कोई काम नहीं मिलता है, तो देन ही स्टार्ट्स मेंडिंग द शूज, ही बिकम्स अ काइंड ऑफ कॉबलर एंड वो पेनीलेस है। और उसके अलावा आपको एक और बात पता चल रही है, हिज सप्लिकेशन का मतलब होता है घुटने टेक देना टू द डेविल। डेविल का मतलब आपको पता है मेफिस्टोफेलिस। आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये जो जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उनको अलग से गूगल पे पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो वो डेविल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे अगर हमें कोई काम नहीं मिले और हम गलत काम करने लग जाएं पैसा कमाने के लिए, तो समवेयर यू नो इन दिस इज अ वर्क ऑफ रेनेसा वेयर ही फील्स। अच्छा, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। पियर्स पेनिलेस, पियर्स पेनिलेस, इसका सबटाइटल है हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, ठीक है। इट इज अ सटायर ऑन 7 डेडली सिन। शिवनाथ जी, नैश जो है वो माना जाता है फोर रनर ऑफ पिकरेस्क नॉवल, PICARESQUE, पिकरेस्क नॉवल। और पिकरेस्क मैंने क्या बोला, इट इज अ वर्ड विच मीन्स नॉवल ऑफ हाईवे। इसका एक कैटेगरी होता है। द वर्ड पिकरेस्क हैज कम फ्रॉम द वर्ड पिकारो। पिकारो का मतलब होता है ठग और अ लो बॉर्न पर्सन।
ऑफ सोसाइटी। ठीक है, आप यस बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। So I have talked about two important works of this writer. The first one is The Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton. So hero is Jack Wilton. मान लीजिए उन्होंने आपको The Unfortunate Traveler देकर के हीरो का नाम पूछ लिया, so don't get confused because the name of the hero is itself in the title. Publishing date पूछ सकते हैं 1594. Okay, the first picaresque novel. Second मैं आपको बता रहा था Pierce Penniless. Now this is a satire on 7 deadly sins. तो अगेन वो सटायर कैसे हुआ, आपको पता ही है, स्लॉथ और लस्ट, ग्लटनी, ये जो 7 डेडली सिंस मानी गई हैं क्रिश्चियनिटी में। अब राइटर उनके ऊपर सटायर कर रहा है किस तरह से कि एक्चुअल में ये हो तो हम ज्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो एक्चुअल में लेकिन ये सटायर है समाज के ऊपर कि क्या समाज इस दिशा में जा रहा है कि जैसे हम देखते हैं कोई भी फिल्म राज कपूर की, जैसे अनाड़ी फिल्म देखते हैं, तो यू सी दैट इन दैट मूवी ये दिखाया गया है कि जो चालाक है वो सरवाइव करेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। सो डोंट यू थिंक लाइक, मैं टॉमस नैश को इसलिए भी पसंद करता हूं कि वो इन सब चीजों के बारे में बात करता है जिसके बारे में आगे जाकर के केवल एक प्ले में हमारे मार्लो ने बात की है कि ये जो समाज है उसमें जितने भी एजुकेटेड यूनिवर्सिटी के जो एजुकेटेड लोग थे, किस तरह से वो लिखते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं बिकॉज ही वॉज नेवर सक्सेसफुल। तो उसको ये बात समझ में आई कि जो आदमी स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस समझते हो ना, जो एक्सटेम्परली पढ़ा सकता है या जिसके पास अपनी खुद की नॉलेज है, ये दिस राइटर इज फेमस फॉर कॉइनिंग एंड नियोलॉजाइजिंग सो मेनी इंग्लिश वर्ड्स। लेकिन उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। मान लीजिए मैं अपने तरीके से कुछ बोलूं तो मुझे कहा जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, आपने सेट पैटर्न पे क्यों नहीं बोला। जैसे आई अपीयर्ड इन मैनी इंटरव्यूज इन माई लाइफ एंड समवेयर वेयर द इंटरव्यूअर्स वर नॉट हाईली इंटेलिजेंट, उनको ऐसे ही लगता था कि नहीं नहीं आप वैसे ही बोलिए जैसा लिखा हुआ है, व्हाई शुड आई स्पीक, मैं वैसे क्यों बोलूं, मैं केवल वो चीज क्यों बताऊं जो लिखी हुई है, देन वेयर आई एम यूजिंग माई ओन माइंड। आप खुद से सोच के देखिए कि आपको, और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप देखेंगे धीरे धीरे भारत बदलेगा। मैं आपको टॉमस नैश की एक खास बात बताता हूं कि टॉमस नैश को समझना तो एक चीज समझ लो आप, आपको पता है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉलेज कौन फैला रहे हैं आपको पता है, द टीचर्स हु आर टीचिंग आउटसाइड यूनिवर्सिटी। जैसे स्कूल के टीचर्स हैं वो ट्रिक्स नहीं बताते हैं, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम क्लियर करके नौकरी लगते हैं वो ट्रिक्स हमें कौन बताते हैं बताइए, ये जो यूनिवर्सिटी के एकेडमिया के बाहर जो टीचर होते हैं। तो आपको नहीं लगता दैट समवेयर एजुकेशन पॉलिसी चेंज करनी क्यों पड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक खामी है, वेस्टर्न कल्चर में भी है। इसीलिए ये जो कोचिंग का कल्चर है वो अमेरिका से ही आया है कि आपने समवेयर, जैसे आपने ऐसे कह दिया कि सबके सामने बहू जो है वो सिर पे पल्ला ढकेगी, सबके सामने सॉफ्ट बोलेगी, सबके खाने के बाद खाना खाएगी, पलट के जवाब नहीं देगी। तो आप कुछ ऐसी फिल्में उठा के देखिए कि वो ह्यूमन बीइंग है, उसको महसूस हो रहा है गर्मी लग रही है, तो जैसे ही ससुर गया उसने तुरंत पल्ला हटा दिया, हाँ ऐसे सांस लिया। सोचो उसको वहां चुप रहने के लिए कह दिया तो वो अपने बच्चे को मार के अपनी पूरी भड़ास निकालेगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रल तो होना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि Thomas Nashe is the only writer who talks about all these things. वो he somewhere says in the name of Pierce Penniless, in the name of Jack Wilton, ये जो unfortunate traveler है, तो वो लिखा नहीं है उन्होंने, he has created these things, you know, in a society where copycats were becoming famous. क्योंकि जितने भी दूसरे राइटर्स थे यूनिवर्सिटी विट्स, दे वर फॉलोइंग द पैटर्न्स यूज्ड बाय द अर्लियर राइटर्स। तो इस वजह से आपको टॉमस नैश इंपॉर्टेंट लगेगा बिकॉज ही वॉज अ काइंड ऑफ इनोवेटिव राइटर इन मैनी वेज। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क लिखिए, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी। अब एब्सर्डिटी की एनाटॉमी बताइए कि एब्सर्डिटी क्या है, व्हाट इज एब्सर्ड। अगर आप जरा भी माइंड रखते हैं ना तो आपको ये टाइटल ही समझ में आ जाएगा कि टॉमस नैश व्हाई ही रोट लाइक दैट। एब्सर्ड क्या है बताइए कि एक एग्जांपल पूछता हूं, देखो एक प्रोफेसर पूछ रहा है कि मैं किसी सेमिनार में इनवाइटेड हूं तो मुझे खाने पीने का और सेमिनार का खर्चा क्यों देना पड़े। अच्छा, अगर मैं कहीं पर अपना पेपर छपाऊं स्कोपस में तो मुझे क्यों खर्चा करना पड़े, व्हाई आई टू स्पेंड। और जो कुछ प्रोफेसर लिख देता है व्हाई कॉमन मैन कैन नॉट रीड इट। सोच के देखिए एक बार कि अगर आप प्रोफेसर हैं तो व्हाई कांट योर राइटिंग इज फेमस,
Why then you are writing your papers on the other writers? फॉर एग्जाम्पल किरण देसाई है, उसके नॉवल को दुनिया पढ़ रही है और उस पर तुम थीसिस लिख रहे हो अपनी, तो इसका मतलब है व्हाट आर यू डूइंग, एक क्वेश्चन मार्क है। तो एब्सर्ड, ये एब्सर्ड नहीं हो गया टीचिंग मेथड, ये यूनिवर्सिटी, ये कल्चर। सो समवेयर यू नो ये जो राइटर है हमारा थॉमस नैश, यू नो ही पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, द काइंड ऑफ एब्सर्डिटीज विच वर फेमस इन द सोसाइटी बाय दैट टाइम, और वो अभी तक चल रही है। आप एक बात बताइए, हम लोग बहुत सारी वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं, एक लड़की को हमने वी हैव अक्यूमुलेटेड डाउरी, ओके, लेकिन हमने उसको गिटार नहीं सिखाया, हमने वायलिन नहीं सिखाया, हमने उसको कबड्डी नहीं सिखाई, हमने उसको कई तरह के कोर्सेज नहीं कराए, लेकिन खूब सारा गहना इकट्ठा कर लिया। देन यू नो हु आर बिकमिंग फेमस? द गर्ल्स ऑन हुम यू नो पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग द अदर वे, ओके। इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझे कि लड़का है, अब लड़के को आप क्यों नहीं तरह तरह की चीजें सिखा रहे हो कि वो एक चलता पुर्जा बन जाए, एक ऐसा, इसीलिए ज्यादा कौन कमा के खा रहा है? सप्लिकेशन टू डेविल जो सबटाइटल है, जो मैंने आपको अभी बुक बताई थी, पियर्स द पेनीलेस, इसके अंदर वो एक चीज आती है, और ये जो द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, द थर्ड वर्क ऑफ दिस राइटर, कि जैसे मैं कई सेमिनार्स में जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि क्वेश्चन ही नहीं पूछने दिए जाते, तो देन आई मोस्टली फाइट कि ये सेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक मैं बुरी तरह से क्वेश्चन ना पूछ लूं। दैट्स व्हाई आई एम वेरी नोटोरियस इन सेमिनार्स, wherever I go, and if somebody who's watching me, and someone who has witnessed me in a seminar, they will be surprised that you know I'm notorious, you know, for asking questions and putting that particular professor in shames at times, कि उसको पता चले कि वो जो लिख के लाया है। एक बार हंगरी की एक प्रोफेसर आई थी बहुत बुजुर्ग, जिसको nobody was questioning, बट देन आई फाउंड कि उसने कोई भी पेपर नहीं लिखा, वो हमें इंडियंस को बुद्धू समझ करके पुदुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आई थी वो, और मैंने लास्ट ईयर वो सेमिनार अटेंड किया था, तो मुझे लगा कि ये क्या एब्सर्ड पेपर रीड कर रही है, बिकॉज उसको मुंबई की डिटेल नॉलेज ही नहीं है और वो मुंबई पे पेपर लिख रही है। तो मैंने कहा कि पेपर लिखने से पहले आप और उसका स्टडी करो पहले, योर पेपर इज नॉट अप टू द मार्क। अब एक नाउ अ पर्सन यू नो हु हैज नो अथॉरिटी टू से लाइक दैट, पीपल वर यू नो लुकिंग एट मी, दे वर सरप्राइज्ड कि मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं। कारण है कि टॉमस नैश भी इसीलिए, ही वॉज वेरी नोटोरियस, टॉमस नैश को कोई पसंद नहीं करता था, उसके वर्क्स को लास्ट में जला दिया गया, यू विल बी सरप्राइज, उसके पीछे हाथ धोके पड़ गए बड़े बड़े। ही वॉज इन्वॉल्व इन द वॉर ऑफ थिएटर्स, एक टर्म लिखिए आप लोग, वॉर्स ऑफ थिएटर, जिसमें बेन जॉनसन, और ये जिसमें आइल्स ऑफ डॉग्स, वो जो ड्रामा लिखा है ना बेन जॉनसन ने, वो टॉमस नैश की मदद से लिखा है। तो राजा को उन्होंने आइल्स ऑफ डॉग में बड़े बड़े जो पेट्रन्स थे जो केवल उनकी तारीफ करने वालों को ही पैसा देते थे, ही वॉज राइटिंग अगेंस्ट देम एंड ऑल। सो आई एम जस्ट यू नो टेलिंग यू अबाउट टॉमस नैश कि यूनिवर्सिटी विट्स को आपको लाइटली नहीं लेना है। दीज यूनिवर्सिटी विट्स आर रियली यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। अच्छा, उसके बाद है द टेरर्स ऑफ द नाइट। टेरर्स ऑफ द नाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। दिस वर्क कैन बी आस्क्ड क्योंकि इसमें द राइटर हैज अटैक्ड ऑन डिमोनोलॉजी। डीमन एक वर्ड लिखिए, DEMON, इसका प्रोनाउंसिएशन है डीमन। डिमोनोलॉजी में राइटर इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डीमंस। अब आपको लगेगा कि डीमंस की क्या बात चल रही है यहां पे। आपको पता होना चाहिए कि डीमंस क्या होते हैं। देयर आर यू नो अ डाइकोटमी दैट वी हैव डिवाइडेड द होल scriptures, even in Hinduism also, in Muslims Quran also, in Bible also, that gods and the people who are not gods, okay, they are demons. So demons they represent you know the bad world, the world of blackness, darkness. लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब कभी हम किसी को demon कहते हैं, somewhere you know we are, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे। जब हम लोग देवदत्त पटनायक का मिथ और मिथ्या, एक बुक का नाम लिखिए, मिथ और मिथ्या एक बुक है, उसको हम पढ़ते हैं ना, तो वो दैत्यों और दानवों के बारे में एक चीज लिखते हैं उसमें कि 6 महीने प्रकृति में दानव हमेशा पाताल में रहते हैं, लेकिन जब हम धरती खोदते हैं और उसके बाद सर्दियां आती हैं और जब हम हल चलाते हैं, धरती खोदते हैं, तो वो डीमंस जो है वो उर्वरकता देते हैं, फर्टिलिटी देते हैं। और जब हम समुद्र मंथन करते हैं तो एक तरफ डीमंस हैं और एक तरफ गॉड्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि दे हैव एन इक्वल कंट्रीब्यूशन इन यू नो इन गेटिंग अमृत, इन गेटिंग लक्ष्मी, इन गेटिंग यू नो हलाहल, इन गेटिंग क्या नाम है उनका, धनवंतरी, इन गेटिंग कामधेनु, एवरीथिंग, but they were not given. It means
समवेयर अगर हम हिंदुइज्म के माइथोलॉजी को देखें तो कहीं ना कहीं दे वर डिनाइड देयर ड्यू। ओके, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में हम देखते हैं कि इफ दे आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी तो दे वर हर्ल्ड इनटू हेल, है ना, उनके ऊपर गॉड जो है वो अपना थंडर यूज करता है। सो डिमोनोलॉजी, आपको पता है कि जब भी जैसे जैसे एक पोस्ट मैंने लिखी थी जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था कि मैं एक यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू देने गया, एंट्रेंस एग्जाम में मेरा नंबर 1 था, वहाँ पे मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया सेंट्रल ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और मैंने देखा कि जब ये लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें 100% पार्शियलिटी चल रही है, नेपोटिज्म चल रहा है। और वो एक साल तक आई वॉज वेरी वेरी डलर्डली थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ दैट आई डोंट नो एनीथिंग। वो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया और उन्होंने मुझे बचा लिया, अदरवाइज आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे आसपास डिमंस हैं, हम जिसको भी डार्क बोलते हैं, समवेयर दैट डार्कनेस हैज बीन गिवन टू देम। ओके, सो एनाटॉमी ऑफ द टेरर्स ऑफ द नाइट, ये वर्क भी बहुत फेमस है। इसमें ही हैज अटैक्ड ऑन डिमोनोलॉजी कि तुम डिमोनोलॉजी की स्टडी क्यों नहीं कर सकते। द वर्ड डिमन यू आर कॉलिंग, वो डिमंस क्यों है, क्योंकि समवेयर देयर अ परसेप्शन हैज बीन गिवन टू देम, इट इज अ स्पॉन्सर्ड परसेप्शन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टमेंट। Summer's last will and testament, you should be aware about this. Summer is actually a personification, ठीक है। Summer एक यहाँ पे एक टाइटल है, सॉरी एक personified क्या कहते हैं उसको, प्रोटैगोनिस्ट है। उसके बाद स्ट्रेंज न्यूज एक वर्क है इनका जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एन आमंड फॉर अ पैरट, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, लिखिए एन आमंड, ALMOND, बादाम, एन आमंड फॉर अ पैरट, 1590 में ये वर्क छपा। ओके, ये इस पे क्या क्वेश्चन आएगा आपको, एक तो इट इज अ रिलीजियस वर्क दैट ही रोट फॉर अगेंस्ट द प्यूरिटन्स एंड ऑल। दूसरा, इट वाज रिटन अंडर अ स्यूडोनिम, उनका नाम लिखिए जिस नकली नाम से इन्होंने लिखा था, पेन नेम से, ताकि लोग इसको पहचान ना पाए। इट क्रिएटेड अ होल कंट्रोवर्सी इन इंग्लैंड। मार्टिन लिखिए, मार्टिन, MARTIN, मार्टिन, एंड मार प्रिलेट, MARPRELATE, मार्टिन मार प्रिलेट, ये इस नाम से इन्होंने ये वर्क लिखा था। मैं फिर से बोल देता हूं, एन आमंड फॉर अ पैरट, ओके, 1590 अंडर द स्यूडोनिम मार्टिन मार प्रिलेट, मार्टिन मार प्रिलेट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम, क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम, ये वर्क छपा था 1593 में। नाउ दिस वर्क इज अगेन द bubonic plague. Actually, he is giving a warning to the people of England that आपको क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, नहीं तो एक प्लेग फैलाए और भी प्लेग फैलेंगे, एंड ही वॉज राइट। ओके, सो क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम, ये जैसा जेरूसलम का हाल हो गया था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो का वही हाल इंग्लैंड का हो जाएगा आने वाले सालों में। तो ये 1593 में इस पे क्वेश्चन आ सकता है पब्लिश कब हुआ, क्योंकि आपको मालूम है 92-93 वो प्लेग वाले ईयर्स थे। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट चीज, आप मैंने डॉग्स ऑफ आइल्स के आइल्स ऑफ डॉग बताई दिया आपको, आइल्स ऑफ डॉग, ISLE, आइल ऑफ डॉग, ये 1597 में एक ड्रामा छपा था। इसमें नैश वॉज इन्वॉल्व विद बेन जॉनसन इन द वॉर ऑफ थिएटर्स। आप इसे इतना लिख लीजिए, इससे आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाएगी कि सर ने कुछ बताया था इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको मालूम है फिलिप सिडनी का वो जो सोनेट कलेक्शन है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, पहले बताइए याद है ना, कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। उन्होंने इसने हमारे नैश ने, टॉमस नैश ने उसका एक प्रेफेस लिखा था, लेकिन वो एक ऐसी थी, पायरेटेड कॉपी थी। तो बाद में जब फिलिप सिडनी ने ओरिजिनल पब्लिशिंग जब किया तो उसमें से टॉमस नैश का लिखा हुआ प्रेफेस हटा दिया। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इसका मतलब है कि उन्होंने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के बारे में जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव लिखा होगा, है ना, क्योंकि ये जितनी भी आर्ट फॉर्म्स है ना जो रोमन राइटर्स से ये लोग ले रहे हैं, he was always criticizing. This writer Thomas Nashe was always a great critic of anything which was a copy. क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन आए, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि कार्लिल के स्टाइल में कौन सा कंट्री शामिल है, सो यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, जर्मन स्टाइल में वो लिखते थे। तो इन बिटवीन जर्मन टर्म्स वर देयर, टॉमस कार्लिल द विक्टोरियन राइटर। ऐसे ही हमारा जो टॉमस नैश है, आपने देखिए बाकी के राइटर्स दे आर इधर शोइंग ऑफ देयर लैटिन लैंग्वेज, अदर राइटर्स आर शोइंग ऑफ देयर ग्रीक नॉलेज।
जैसे होता है ना, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश में ही लेक्चर दूं एंड आई ट्राई टू प्रिटेंड दैट मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैंने 14 टाइम नेट किया है, 3 टाइम JRF किया है, मैं डबल MPhil हूं, मैं PhD हूं, मैं ये जानता हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे मालूम है कि अगर क्योंकि हिंदी में आपने सुना होगा, संस्कृत में विद्या ददाति विनयम, जितना मुझे नॉलेज होता जा रहा है मुझे और ज़्यादा मुझे हम्बलनेस आती जाती है कि मैं कैसे अपने बारे में बढ़ चढ़ कर बोलूँ। वो जो मैं एक फ्रेज लिखता हूँ एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, वो सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे इतना फोर्स किया कि आप लिखना शुरू करो, क्योंकि आपसे कम क्वालिफाइड लोग अपने आप को एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो मुझे बड़ी शर्म भी आती है कि कोई मेरा गाइड देखेंगे, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे जो मेरे जिससे भी क्वालिफाइड है, उनको कितना बुरा लगेगा। बट चलो दैट इज ओके, समटाइम्स फॉर मार्केट वी हैव टू डू मेनी थिंग्स। अभी बात चल रही है कि आई एम इन द फेवर ऑफ कॉलोक्वलिज्म। मैं बातचीत की लैंग्वेज में पढ़ाऊं, मेन मकसद क्या रहे कि आपके दिमाग में नॉलेज डाल दूं, बिकॉज एनीबडी हु इज गोइंग टू बी अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश अल्टीमेटली विल लर्न लाइक what to speak and how to speak. Sometimes when I talk to my friends, those who are now head of the departments in different universities and all, then I find कि जब हम लोग पढ़ते थे साथ में तब तो हम हिंदी बोलते थे, अब बल्कि उनसे ज़्यादा नॉलेज मुझे है क्योंकि मैं सारे दिन ही वो सब पढ़ाता हूँ जो वो कभी कभार ही पढ़ाते। तो मैं देखता हूँ कि दे नेवर टॉक इन हिंदी एंड आई एम सरप्राइज। मुझे कई बार लगता है कि वो क्यों इंग्लिश बोल रहे हैं, बिकॉज समवेयर इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो ये जो राइटर था कॉलोक्वलिज्म में लिखता था, इन द रिटन लैंग्वेज ऑल्सो ही यूज्ड टू राइट। आपको ये तब बोलनी चाहिए व्हेन लाइक सपोज अ स्टूडेंट फ्रॉम उड़ीसा डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, देन आई कैन फेयरली बी इन इंग्लिश, आई डोंट माइंड। कॉलोक्वलिज्म एक्सटेम्परी और एक्सटेम्पोरेनियस प्रोज, एक वर्ड है इंग्लिश में जो बहुत ही मिसप्रोनाउंस किया जाता है। 2 वर्ड्स हैं जिनको मैं देखता हूँ बहुत मिसप्रोनाउंस करते हैं लोग। वैसे तो एक लिस्ट है मेरे पास लंबी सी। एक्सटेम्पोर नहीं होता है, इट्स EXTEMPORE। इफ यू गो टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी, तो एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, यू विल फाइंड इट इज एक्सटेम्परी, नॉट एक्सटेम्पोर। ओके, सो एक्सटेम्पोरी स्टाइल या एक्सटेम्पोरेनियस स्टाइल क्या होता है, दैट वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड। लाइक मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे दिमाग में जो भी आता जा रहा है दैट मीन्स ओरिजिनल लेक्चर। ये नहीं कि मैं वीडियो बना लूं और कट कर दूं कोई चीज जो मेरे मुंह से गलत निकल गई है, मैं भूल रहा हूं और वो आपके सामने आ रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा याद आ गया वो भी आपके सामने आ रहा है। इट मीन्स लाइव, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लैंग्वेज और से ऑर्गेनिक टीचिंग। न्यूली कॉइंड वर्ड्स, आप न्यूली कॉइंड वर्ड्स आप मोस्टली हम यूज नहीं करते अंडर द फियर कि सामने वाले को समझ नहीं आएगा, बट थॉमस नैश ये सब नहीं करते थे। ही यूज्ड टू यूज ऑल दीज थिंग्स इन ऑल। ठीक है, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता दूं, देखो कि इन्होंने किस किस चीज पे अटैक किया एलिजाबेथन इंग्लैंड में। ही अटैक्ड ऑन प्लेजियरिज्म। By that he was such a modern writer that he used to say that if you're writing that way, that has already been written by some other people. You will be surprised that I am not in the favor of writing many papers, research papers. उसका कारण है, जब मैं रिसर्च पेपर लिखता हूं तो इट्स हाईली ओरिजिनल, आई मोस्टली डोंट कोट। कारण यू आर कोटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। वी हैड अ प्रोफेसर, थैंक गॉड हमें बहुत बेस्ट प्रोफेसर्स मिले लाइफ में, प्रोफेसर तिवारी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। वो कहा करते थे ही नेवर यूज्ड टू राइट पेपर्स एंड ऑल। हमने उनसे पूछा कि सर व्हाई डोंट यू पब्लिश पेपर्स एंड ऑल, तो उन्होंने कहा कि व्हाई शुड आई पब्लिश, बिकॉज वट एवर पीपल आर राइटिंग हैज ऑलरेडी बीन सेड, व्हेनेवर आई विल हैव समथिंग न्यू टू से आई विल राइट अ पेपर। जैसे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में क्या कहा है, जब आप उनका प्रेफिस पढ़ेंगे तो उसमें पहले पॉइंट में ये देखा है कि किताबें ओरिजिनल तो 2-4 हैं, बाकी तो सब उसी से ले करके लिखा जा रहा है। So the same thing, this writer talks. Plagiarism जिनको नहीं पता होना चाहिए, साहित्यिक चोरी, लिटरेरी थेफ्ट को प्लेजियरिज्म बोलते हैं, किसी और के मटेरियल को अपना लिख करके और कहना कि मैंने लिखा है। ओके, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अब मैं बोल रहा हूं और अगर मैं किताबी ज्ञान दूं, बुकिश नॉलेज देने लग जाऊं बैठ करके, देन आई विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, खुद ब खुद ही बात आना। थर्ड इज कॉपी कैट्स। ही वॉज अगेंस्ट ऑल द पीपल हु वर कॉपी कैट्स, जो मैं बता चुका। सिसरो एंड सेनेका, दोज वर द राइटर्स whom they were copying, he was also against them. Then puritanical, उसने कहा था कि जो प्यूरिटन लोग होते हैं ये बड़े स्मग होते हैं, ना तो खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, they are always against anything which is new. तो आप देखिए किसी पुराने प्रोफेसर को देखिए, उनके नाक भोई सिकोड़ते रहते हैं वो नई चीज को लेकर के, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट इनोवेशन। तो प्यूरिटैनिकल एटीट्यूड नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, और इसीलिए थॉमस नैश को मैंने आज चुना। आई डिड नॉट सेलेक्ट लिली और से ग्रीन और से पील,
पीले हरे ग्रीन मैंने इस तरह के राइटर्स इसलिए नहीं चुने, वो मैं कल बात करूंगा उनके बारे में। ओके, सो प्यूरिटैनिकल का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बहुत ही ऐसा प्रिस्टिन सा एटीट्यूड रखना कि द थिंग्स शुड बी वेरी मच प्योर एंड द थिंग्स शुड नॉट बी ऑब्सीन। थॉमस नैश फेमस है, आपको पहले बता दूं, इरोटिक पोएम्स लिखने के लिए उन्होंने एक फेमस पोएम लिखी है उन्होंने, उसका नाम है द चॉइस ऑफ वैलेंटाइन्स। लिख लीजिए, ये पब्लिश उस वक्त नहीं हुई थी, इनकी मौत के बाद पब्लिश हुई थी, पॉस्टमस पब्लिकेशन वाज देयर। द चॉइस ऑफ वैलेंटाइन्स, इसमें ये जो लड़का है ये एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है ब्रॉदल में, एंड ओवरऑल पूरा लव मेकिंग एंड प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड देन द वे दैट प्रोस्टिट्यूट यूज डिल्डो। नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज डिल्डो, ओके, तो इसीलिए इस पोएम का नाम रख दिया गया है नैशेस डिल्डो, तो ये बहुत फेमस है। तो इरोटिक पोएम। अब एक बात बताइए, ओपनली हम लोग वेस्टर्न मूवीज देख करके और उनके अंदर के जो न्यूड सीन्स हैं उनको तो प्रेज करते हैं, जिसके लिए D.H. लॉरेंस फेमस है, दैट समवेयर ही कॉल्ड नॉवेल्स द रिलीजन ऑफ ब्लड, कि अगर हम सेक्स दिखाते हैं तो दैट इज समथिंग ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन नेचर, देन व्हाई आर यू हाइडिंग दैट फ्रॉम लिटरेचर? तो ही वॉज दैट वे अगेंस्ट एनीथिंग विच वॉज प्यूरिटैनिकल। प्यूरिटन लोग क्या करते थे, थिएटर को मानते थे कि बच्चों को बिगाड़ देंगे, ठीक है। सो ही फेवर्ड नियोलॉजिज्म, नए नए वर्ड्स को खोजना। नियोलॉजिज्म वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ। पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स होते हैं, जैसे दो अलग अलग वर्ड्स के आधे आधे हिस्से लेकर नया वर्ड बना देना, जैसे मोटेल, सो मोटर प्लस होटल, उसको मिक्स कर दिया तो एक वर्ड बन गया मोटेल। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। देन ये इम्प्रॉम्प्टू थे, स्पॉन्टेनियस थे, एडलिब लिखते थे। अच्छा, इनकी जो इरोटिक पोएम्स हैं उससे मुझे याद आ रहा है कि ओविड जो है ना, रोमन राइटर, ओविड ने भी अमोरस AMORES करके काफी ज्यादा amorous poems लिखी है. I am not using the word vulgar because anything which is vulgar somewhere is aesthetic. Okay, and even I don't use the word voluptuous also because there is a thin line between voluptuous and sensuousness. If somebody is writing in a sensuous manner, all the novels, you know, which are or the poems which are being written these days, somewhere people are giving a touch to that. और हमारे राधा और कृष्ण का जो प्रेम है या उनसे रिलेटेड जो गाने हैं, जैसे मीरा बोलती है कि पिया बिन मेरी सेज अलूनी. अब बताइए इसका क्या मतलब है? पिया बिन मेरी सेज अलूनी. पिया मतलब कृष्ण और सेज मतलब मैरिज बेड. अलूनी का मतलब विदाउट सॉल्ट, एंड सॉल्ट हेयर मीन टू से दैट एंजॉयमेंट, यू नो, which one gets in the love making. So this is always present, and that's why somewhere when we read all the sons of Ben, or say metaphysical writers, or say cavalier writers, which are going to be the subjects of the coming lectures, in some way we need to understand the need of the use of all these say sensuousness, जो किड्स में भी बहुत था. तो दिस इज ऑल अबाउट थॉमस नैश. मैं और भी बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, बट दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई हैव टच्ड सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स. अब आप इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको फेसबुक से तो डिलीट कर दूंगा थोड़ी देर में. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. कल क्लास नहीं होगी. मंडे आई विल टेक योर क्लास.